SK21 Volume 2 Gynae Paper number 1 Lecture number 3 Which disinfectant is most appropriate for instruments used in laparoscopic sterilization? तो laparoscopic sterilization में आप क्या यूज़ करते हो? You use glutaraldehyde. Laparoscopic instruments are semi-critical and contact mucous membrane, intestinal, internal tissues. Glutaraldehyde provide high-level disinfectant suitable for such instrument. A teenage girl presents with primary amenorrhea, acne, and axillary pubic hair. Which gland is most likely responsible for her androgenic features? तो androgenic features के लिए what are responsible? That are your adrenal cortex. Androgenic features जो है वो आपके adrenal androgen arise from the adrenal androgen secretion, और amenorrhea जो है आपके साथ hypothalamic pituitary ovarian dysfunction की वजह से. A woman develop postpartum pituitary necrosis, Sheehan syndrome. What is common consequence? तो इसमें loss of menses amenorrhea आपको मिलेगी. Sheehan syndrome में anterior pituitary का infarction होगा. It leads to deficiency of gonadotropin, which leads to amenorrhea and other endocrine deficiencies. फिर है woman with previous cesarean scar delivers a 3.7 kg baby. Which statement is correct regarding the uterine rupture risk? तो uterine rupture risk के बारे में इसमें कौन सा correct है? तो that is increased risk due to previous scar. ठीक है, uterine rupture risk is higher in women with previous C-section, especially with macrosomic infants or labor induction. Which factor increases the risk of recurrent ectopic pregnancy? तो tubal damage from prior infection or surgery अगर होगा तो it will increase the risk of recurrent ectopic pregnancy. ठीक है, तो tubal scarring from prior ectopic pregnancy, PID or surgery increases recurrence risk. फिर है a hemodynamically stable patient has an ectopic pregnancy with serum HCG less than 1500. सीरम HCG लेस है 1500 से, तो इसमें मैनेजमेंट आपने क्या करनी है? मेडिकल मैनेजमेंट. यू हैव टू गिव मेथोट्रेक्सेट. A patient with missed miscarriage is planned for evacuation but has a coagulation defect. तो पेशेंट है उसको मिस्ड मिसकैरेज है और नाउ शी इज़ प्लान्ड फॉर evacuation but has a coagulation defect. तो आपने क्या करना है नेक्स्ट? तो आप पहले उसके करेक्ट कोगुलोपैथी फर्स्ट. एक्टिव कोगुलोपैथी जो है मस्ट बी करेक्टेड बिफोर यूट्राइन evacuation to prevent life threatening hemorrhage. फिर है a woman presents 8 days after miscarriage with a mass protruding from cervix and rising HCG. मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या होगा? तो वुमेन 8 day आफ्टर मिसकैरेज प्रेजेंट हुई और उसको मास प्रोड्यूटिंग फ्रॉम द सर्विक्स एंड राइजिंग HCG है, तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या है? दैट इज़ योर रिटेन प्रोडक्ट ऑफ दैट इज़ योर इन्वेसिव मोल. ठीक है, इन्वेसिव मोल. आफ्टर वेडिंग several guests develop food poisoning. Investigators compare those who ate specific menu items versus those who did not to identify the source. What type of study is this? तो ये आपके साथ कौन से टाइप की स्टडी है कि इन्वेस्टिगेटर कंपेयर कर रहा है those who have specific menu items versus those who did not. तो ये आपके साथ एक कोहॉर्ट स्टडी है. ठीक है, कोहॉर्ट स्टडी क्यों है? Because in cohort study participants are classified based on exposure status. Example, food consumed. उन्होंने जो food consume किया है तो exposure status पे आपने उसको classify करना है and follow it to determine the outcome, और आपने फिर outcome देखनी होगी. ठीक है, example food poisoning कितने persons को हुआ है. This is typical in foodborne outbreak. Investigators 29-year-old woman developed optic neuritis and weakness in her lower limbs. MRI revealed demyelinating lesion in the brain. तो ये इसका कीवर्ड है in spinal cord. Which of the following cell types most directly affected in this condition? तो मैंने आपको कॉप्स निमोनिक बताया था. कॉप्स में C फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, PNS में श्वान सेल्स हैं. तो ब्रेन इज CNS. ठीक है,
तो उसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट। अ पेशेंट केम टू इमरजेंसी विद एस्पिरिन ओवरडोज, व्हाट शुड बी डन टू रिवर्स एस्पिरिन टॉक्सिसिटी। तो एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में हम क्या देते हैं, इसमें हम देते हैं IV सोडियम बाइकार्बोनेट। A clinician noticed reports of patient which showed the following picture 6 months ago. HBS AG पॉजिटिव है, EB पॉजिटिव है, एंटीबॉडी नेगेटिव, और हेपेटाइटिस डी एंटीजन भी नेगेटिव है। नाउ ही प्रेजेंट्स विद दिस रिपोर्ट। पहले उसको जो है हेपेटाइटिस बी हुआ है, अभी उसको एंटीजन पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव है, और डी हेपेटाइटिस बी भी हेपेटाइटिस डी भी पॉजिटिव है। तो क्लिनिशियन ने क्या इंटरप्रेट किया, तो इसमें आपके साथ है एक सुपर इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस डी ओवर बी। को इन्फेक्शन तब होता जब ये दोनों एक साथ आते, लेकिन पहले उसको हेपेटाइटिस बी हुआ है, उसके बाद उसको जो है हेपेटाइटिस बी हुआ, हेपेटाइटिस डी हुआ। सो दैट इज़ अ सुपर इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस डी ओवर बी। सुपर इन्फेक्शन में आप क्या करते हो कि हेपेटाइटिस डी एडेड आफ्टर क्रॉनिक हेप बी, ठीक है। को इन्फेक्शन में दोनों एक साथ होते हैं, सिमल्टेनियस बी एंड डी बोथ पॉजिटिव फ्रॉम स्टार्ट, और HBS एंटीजन परसिस्ट इन बोथ केसेस, ठीक है। इसमें एक और बात आपने याद रखनी है, अगर एंटीजन सरफेस के ऊपर एंटीजन पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब है कि दिस इज़ एक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो उसमें आपने फिर MG को देखना है। IgM अगर होगा तो दैट इज़ फॉर एक्यूट इन्फेक्शन, और IgG इज़ फॉर क्रॉनिक इन्फेक्शन, ठीक है। फिर a female presents, patient है primary gravida, comes to you from far village at 38-week gestation with history of pelvic disproportion. On X-ray, true conjugate pelvis is 8 cm. How will you proceed? ठीक है, फीमेल पेशेंट है, प्राइमरी ग्रेविडा है, फार विलेज से आई है, 38-week gestation है, और पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है उसको, ठीक है। तो ये माइंड में रखो। एक्सरे पे आपको ट्रू कंजुगेट पेल्विस नज़र आ रहा है, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो आपने इसमें इलेक्टिव लोअर सेगमेंट सी सेक्शन करवाना है, इलेक्टिव लोअर सेगमेंट सी सेक्शन, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एट्रोपिन इज़ ट्रू। तो एट्रोपिन के बारे में क्या चीज़ ट्रू है, दैट इज़ एट्रोपिन इज़ कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। पोस्टपार्टम मोमेंट डेवलप्स फीवर, टेकिकार्डिया एंड सॉफ्ट यूट्रस। तो इसमें फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट यू विल स्टार्ट एंटीबायोटिक्स, सॉरी, ठीक है। पोस्टपार्टम वूमेन है, उसको फीवर टेकिकार्डिया है, फीवर में और टेकिकार्डिया और सॉफ्ट यूट्रस है, तो डायरेक्टली स्टार्ट एंटीबायोटिक। फीवर और टेकिकार्डिया विद सॉफ्ट नॉन कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस सजेस्ट पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस, और इसमें आपने IV एंटीबायोटिक फर्स्ट लाइन देने हैं। फुलमिनेंट हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद। तो जब भी आपने फुलमिनेंट का वर्ड देख लिया, डायरेक्टली आपके माइंड में हेपेटाइटिस ई आना चाहिए, ठीक है। तो फुलमिनेंट हेपेटाइटिस में आपके साथ हेपेटाइटिस ई होता है। विच सेल्स आर फाउंड इन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड सिक्रीट सर्फेक्टेंट लाइक प्रोटीन। तो इसका की वर्ड है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको जो है इन्हीं दोनों में आप बताओ, तो दैट इज़ योर क्लारा सेल्स, ठीक है। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल में यू गेट क्लारा सेल्स। अच्छा, हिस्टामीन रिलीज ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। तो हिस्टामीन क्या करवाता है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज़ योर पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड वार्मथ, ठीक है। अ पेशेंट इज़ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव, अभी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, तो विच इंडिकेट ऑन गोइंग वायरल रिप्लिकेशन। इसमें कौन सा है जो आपको वायरल रिप्लिकेशन के बारे में या वायरल लोड के बारे में बताता है। तो वायरल या इन्फेक्शन के बारे में जो बताता है दैट इज़ HBeAg, ठीक है। तो आपने E इज़ फॉर इन्फेक्टिविटी, और ये आपको इन्फेक्शन के बारे में बताता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ इसका मतलब है कि एक्टिव वायरल रिप्लिकेशन हो रही है और इन्फेक्टिविटी है। In a patient with choriocarcinoma, which tumor marker is elevated and the tumor originates from। अच्छा, तो कोरियोकार्सिनोमा में बीटा HCG और आपके साथ ट्रोपोब्लास्टिक टिश्यू से ये ओरिजिनेट होता है।
A chronic alcoholic presents with hepatomegaly, elevated liver enzyme, इमेजिंग पे आपको फैटी इन्फिल्ट्रेशन नज़र आ रही है, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस अमंग्स द फॉलोइंग क्या हुआ? अल्कोहलिक है, हेपेटोमेगैली, एलिवेटेड लिवर इंजाइम है, तो ये आपके साथ हो गया अल्कोहलिक फैटी लिवर। ठीक है। अर्ली स्टेज ऑफ अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ आपके साथ फैट एक्यूमुलेशन होती है इन हेपेटोसाइट्स विच कॉजेज हेपेटोमेगैली, और ये आपके साथ रिवर्सिबल है विद अल्कोहल सेसेशन। जब आप अल्कोहल छोड़ोगे तो ये आपके साथ नॉर्मलाइज हो जाएगा। पेशेंट विद क्रॉनिक अल्कोहलिज्म डेवलप लिवर फाइब्रोसिस। क्रॉनिक अल्कोहल ले रहा है, अभी उसने लिवर फाइब्रोसिस डेवलप की विद डेंस इरेगुलर कोलेजन डिपोजिशन, तो ये आपके साथ अभी क्या हुआ? दिस इज़ सेरोसिस। ठीक है। जब भी आपको इरेगुलर कोलेजन डिपॉजिट्स नज़र आ गए तो यू शुड सस्पेक्ट सेरोसिस। क्रॉनिक अल्कोहल इनटेक कर रहा है, हेपेटोसाइट इंजरी भी है, फाइब्रस सेप्टा फॉर्मेशन होती है इसमें विच लीड्स टू सेरोसिस। तो अगर डेंस इरेगुलर डिपोजिशन ऑफ कोलेजन रिप्लेसेस नॉर्मल आर्किटेक्चर, आपने सिरोसिस की तरफ जाना है। अ न्यूट्रोपिनिक पेशेंट विद हॉजकिन लिम्फोमा ऑन chemotherapy develops fever. He is given filgrastim. What is the mechanism of filgrastim? तो filgrastim का mechanism है कि it stimulates neutrophil production. filgrastim आपके साथ GCSF है, stimulates bone marrow neutrophil production, तो bone marrow में आपके साथ न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन को ज़्यादा करेगा filgrastim. Used in chemotherapy induced neutropenia to reduce infection risk. अच्छा, a patient has rectal or pelvic abscess, which antibiotic cover anaerobic bacteria in this region? तो anaerobic bacteria को amongst the following कौन सा कवर करेगा? That will be your vancomycin and that will be your metronidazole. ठीक है, तो याद रखें for anaerobic bacteria you have to give metronidazole. ठीक है, आपने metronidazole देना है। रेक्टल और पेल्विक एब्सिस है और फिर उसमें आपने एनारोबिक बैक्टीरिया देनी है, तो दैट इज़ योर मेट्रोनिडाजोल। एन ओबीस पेशेंट डेवलप अ रेड ओपन सर्जिकल वाउंड, एब्जॉर्बेबल सूचर वाज यूज्ड। अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है? ओबीस पेशेंट में आपके साथ रेड ओपन सर्जिकल वाउंड हुआ और एब्जॉर्बेबल सूचर वाज यूज्ड, तो इसमें अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आपके साथ क्या है? दैट इज़ योर ड्रेन इंसर्शन ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, ड्रेन इंसर्शन ड्यूरिंग सर्जरी। फिर है एब्जॉर्बेबल सूचर्स में क्या होता है? ये रिड्यूस करते हैं रिड्यूस सूचर रिलेटेड इश्यूज। ड्रेन प्लेसमेंट जो है वो आपके साथ कैन इंक्रीज लोकल इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन रिस्क कंट्रीब्यूटिंग टू वाउंड डिहेसेंस। फिर है अ प्रेग्नेंट वुमेन इज़ डायग्नोज्ड विद ओलिगोहाइड्रोमनियाज ऑन अल्ट्रासाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉमन फीटल कॉज? तो कॉमन फीटल कॉज आपके साथ है फीटल रीनल एजेनेसिस। 25-year-old वुमेन आई विद सडन हाई ग्रेड फीवर, डिफ्यूज मैकुलर रैश है, हाइपोटेंशन है, वॉमिटिंग है, एग्जामिनेशन पे शी हैज़ एरिथीमा ऑफ द palms and soles and desquamation after 1 week. She recently used a super absorbent tampon during her menstrual period. Which organism is most likely responsible for this condition? तो इसमें आपने जब भी टैम्पॉन यूजिंग की हिस्ट्री आपको मिली, ठीक है, तो टैम्पॉन यूजेज में स्टेफ ओरियस आपने सस्पेक्ट करना है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, दैट इज़ कॉज्ड बाय स्टेफ ओरियस प्रोड्यूसिंग एक्सोटॉक्सिन विच एक्ट्स एज अ सुपर एंटीजन बाइंडिंग टू MHC2 और टी सेल रिसेप्टर मैसिव साइटोकाइन रिलीज़ करवाता है। फैक्टर जो है इंक्लूड मेंस्ट्रुअल टैम्पॉन्स यूज, नेजल पैकिंग एंड पोस्ट सर्जिकल वाउंड्स। क्लासिक फीचर इसमें है फीवर, हाइपोटेंशन, डिफ्यूज एरिथमेटिस रैश है, डिस्क्रिमेशन, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, फिर है अ वुमन विद थायरोटॉक्सिकोसिस इज कैजुअल फॉर रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी बट इन हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, व्हाट इज़ द करेक्ट अप्रोच? तो इसमें करेक्ट अप्रोच क्या है? यू हैव टू स्टॉप द रेडियो एक्टिव आयोडीन एंड स्टार्ट PTU इफ़ नीडेड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में PTU देते हैं, सेकेंड और थर्ड में मीथामेजोल। Patient with right-sided heart failure develop hepatomegaly. Liver biopsy shows nutmeg appearance. This finding is characteristic of
तो नटमेग लिवर आपको मिलता है क्रॉनिक पैसिव कंजेशन में, ठीक है, क्रॉनिक पैसिव कंजेशन में यू गेट द नटमेग लिवर। अच्छा, ये पिक्चर इन्होंने दिया है और आपको कहा है इन्होंने कि दिस पिक्चर वाज गिवन ऑफ अ न्यू बॉर्न एंड इज़ आस्क्ड अबाउट द डिफेक्ट। मैंने तो वैसे इस तरह का एमसीक्यू नहीं देखा पार्ट 1 में, ठीक है, लेकिन अभी इमेजेस भी शुरू कर दिए। तो ये डिफेक्ट आपको किस चीज़ का लग रहा है? व्हाट इज़ एब्सेंट, तो इसमें फ्रंटो नेजल प्रोमिनेंस इज़ एब्सेंट, आसान था वैसे, ठीक है। A woman wants to know about ovarian reserve, which of the following is routinely used? तो ovarian reserve में antral follicle count is used. Per has 6-month-old infant presents with palpable right-sided abdominal mass. Which of the following is most likely diagnosis in this age group? ठीक है, तो 6-month-old infant जो है he presents with a palpable right-sided abdominal mass, तो कौन सा इसमें आपको डायग्नोसिस लग रहा है? दिस इज़ न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल मेलिग्नेंसी है, इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर में होगा, typically presents with firm irregular right-sided mass which may cross the midline, ठीक है, can be associated with hypertension and elevated urinary catecholamine metabolites. फिर है a male infant presents with palpable inguinal mass that increase in size when crying and is partially reducible as well. Most likely cause क्या है? मेल इन्फेंट है, उसको palpable inguinal mass है जो आपके साथ इंक्रीज हो रहा है इन साइज, when crying and जब वो क्राई करता है ये मास आपके साथ इंक्रीज इन साइज होता है एंड इज़ पार्शली रिड्यूसिबल, और पार्शली रिड्यूसिबल है तो मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या हुआ? दिस इज़ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कॉमन है मेल इन्फेंट्स में ड्यू टू पेटेंट processes vaginalis. The mass increase with crying or straining or may be reducible, which require early surgical repair to prevent incarceration or strangulations. Here have meta-analysis done which shows small studies have more literature influence than large one, which affect overall result. This is, ठीक है, मेटा एनालिसिस हुई है और आपको इट शो स्मॉल स्टडी हैव मोर लिटरेचर इन्फ्लुएंस देन लार्जर वन, तो ये आपको ओवरऑल इफेक्ट इसका क्या है? दिस इज़ फाइल ड्रॉवर इफेक्ट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी? दैट इज़ द FC पोर्शन। chi-square chart used for which of the following? chi-square chart हम यूज़ करते हैं फॉर कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। टी टेस्ट हम यूज़ करते हैं मीन ऑफ 2 ग्रुप्स के लिए, एनोवा टेस्ट यूज़ करते हैं मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स के लिए। chi-square में आपने 2/2 टेबल याद रखना है और कैटेगोरिकल डेटा याद रखनी है। पाई चार्ट का काम है परसेंटेजेस के साथ, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद फैटिग, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया एंड लॉस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। हाइपोटेंशन हाइपोग्लाइसीमिया है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी लॉस है, आपको लो TSH नज़र आ रहा है, लो ACTH, LH, FSH और GH, ये सारे आपके साथ लो हैं, TSH, ACTH, LH, FSH और ग्रोथ हार्मोन। तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज आपको क्या लग रहा है? ठीक है, दिस इज़ पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या होता है? इसमें आपके साथ डिफिशेंसी होती है ऑफ ऑल द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उन सब की डिफिशेंसी हुई होगी। इट कॉजेज़ में इंक्लूड पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से हो सकता है, शीहान सिंड्रोम की वजह से, इन्फार्क्शंस या ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो सारे के सारे हार्मोन्स आपके साथ डेफिशिएंट हो जाएंगे। क्लिनिकल फीचर्स में आपको फैटीग, हाइपोटेंशन, एमेन्यूरिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे एक साथ। 36 वीक प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंट्स विद सडन पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग एंड यूट्राइन टेंडरनेस। तो 36 वीक प्रेग्नेंट वुमेन है
उसको सडन पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग है, यूट्राइन टेंडरनेस है। तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या हुआ? पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग जब भी आ गई, आपने पेनफुल और पेनलेस को देखना है, ठीक है। पेनफुल में आपने प्लेसेंटल एब्रप्शन को कंसिडर करना है, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया वासा प्रीविया दोनों में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। A G3P2 38 weeks pregnant woman is in active labor, is 8 centimeter dilated when a lady doctor performs arm artificial rupture of membranes. Immediately after arm, the patient develops suddenly heavy vaginal bleeding. Fetal heart rate begins to show deceleration. What is the next best step in management? तो next best step in management क्या होगा? That will be your C-section, ठीक है। ये क्या था कि इस प्रेग्नेंट वूमेन जो थी एक्टिव लेबर में थी, 8 सेंटीमीटर डायलेटेड था, ठीक है। व्हेन अ लेडी डॉक्टर परफॉर्म्स आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो आफ्टर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन पेशेंट को सडन हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। फीटल हार्ट रेट भी आपके साथ जो है उसमें डिसेलरेशन स्टार्ट होना शुरू हो गई। तो यू विल डायरेक्टली इमीडिएटली प्रोसीड विद सी सेक्शन। 30-year-old woman है, 32 weeks पे presents with painless vaginal bleed. Her vitals are stable, fetal movements are normal, abdominal exam पे uterus आपको soft non tender नज़र आ रहा है। You suspect placenta previa, ठीक है, पेनलेस था और आपने सस्पेक्ट भी किया प्लेसेंटा प्रीविया। तो विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया? तो प्लेसेंटा प्रीविया को आप किस से डायग्नोस करते हो? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से आप इसको जो है डायग्नोस करते हो, ठीक है। अ वुमन डिलीवर्स अ हेल्दी बेबी बट डेवलप कोगुलोपैथी एंड रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। हेल्दी बेबी डिलीवर किया, उसके बाद कोगुलोपैथी और रिटेन्ड प्रोडक्ट थे कंसेप्शन के। तो इसमें मैनेजमेंट आपने क्या करनी है? आपने इसको इन तीनों में आपको क्या लग रहा है? चलो फोर्थ भी देख लेते हैं। तो उसको रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन थे, कोगुलोपैथी थी। तो यू विल गिव कंबाइंड FFPs, पैक्ड सेल्स और सक्शन प्लस एवैक्यूएशन। तो रिटेन प्रोडक्ट्स अगर आपके पास होंगे तो उसमें ऑन गोइंग ब्लीडिंग भी है, साथ में कोगुलोपैथी में आपने FFP और पैक्ड सेल्स देने हैं, और डेफिनेटिव मैनेजमेंट रिमूव द रिटेन प्रोडक्ट वाया सक्शन एंड एवैक्यूएशन। अच्छा, फॉलोइंग कोविड-19 वैक्सीनेशन पेशेंट इज कंसर्न्ड अबाउट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म रिस्क, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डोज रिस्पॉन्स रिलेशन। ठीक है, पेशेंट को कोविड-19 वैक्सीन मिला और अभी ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म रिस्क। तो कौन सा इसमें बेस्ट डिस्क्राइब द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, इनमें आपको कौन सा लग रहा है? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, क्वांटल रिस्पॉन्स, ऑल और नन। रेयर एडवर्स इवेंट है लाइक वैक्सीन इंड्यूस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म फॉलोज अ क्वांटल पैटर्न, ईदर इट ऑकर्स और इट डज नॉट ऑकर। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है माइल्ड फीवर, माइल्जियाज आपको मिलेंगे, फॉलोज कंटिन्यूस ग्रेडेड रिस्पॉन्स, बट थ्रोम्बोटिक इवेंट्स आर ऑल और नन। अन्यूनेट जो है उसको सेप्सिस और मेनिंजाइटिस डेवलप हुआ, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स आर सीन इन द ब्लड कल्चर, लेबॉर्ट्री पे आपको टम्बलिंग मोटेलिटी, ये इसका कीवर्ड है, टम्बलिंग मोटेलिटी जब भी आपको मिली तो द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज़ लिस्टीरिया। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये कौन सा, हाँ ऑर्गेनिज्म का पूछ रहे हैं, कॉर्नीबैक्टीरियम, डिफ्थीरिया, लिस्टीरिया, बैसिलस। तो टम्बलिंग मोटेलिटी आपको लिस्टीरिया में मिलती है। ठीक है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनीस इस ग्राम पॉजिटिव रॉड, उसमें आपको टम्बलिंग मोटेलिटी मिलती है इन लिक्विड मीडिया एट 20 to 25 degree centigrade. It causes neonatal sepsis, meningitis and infection in immunocompromised adults. Which antibiotic is most effective against Listeria monocytogenes? ठीक है, लिस्टीरिया और इसमें न्यूनेटल मेनिंजाइटिस है। तो जो ओल्ड एज में लिस्टीरिया होता है पेशेंट को, उस ओल्ड एज में भी आपने कंसिडर करना होता है। अबव 60 अगर हो और मेनिंजाइटिस के साइंस हो तो आपने लिस्टीरिया को कंसिडर करना है, जिसमें हम एम्फिसिलिन कवर देते हैं, और बच्चों में भी हमने एम्फिसिलिन ही देना है।
Ampicillin is drug of choice for listeria infection, often combined with gentamicin in severe infections. Cephalosporins are in effect against listeria. ठीक है. अच्छा, जेंटामाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? लेट्स रिकॉल अ पास्ट एमसीक्यू. जेंटामाइसिन में हमने पढ़ा था कि इट इनहिबिट्स द 30S राइबोसोमल सब यूनिट. ठीक है. अच्छा, which of the following lipid lowering drugs cause bleeding by interfering with vitamin K metabolism? तो vitamin K metabolism के साथ कौन सा interfere करता है lipid lowering drugs among the following? That is your option A, fibrates. ठीक है. fibrates जो है इसमें gemfibrozil phenofibrate आते हैं and may interfere with vitamin K metabolism, especially in patient on warfarin, जहाँ पे आपके साथ increased risk of bleeding होता है. तो statins, ezetimibe and bile acid sequestrants do not typically affect coagulation. फिर है an ultrasound shows snowstorm pattern in a woman. तो यहाँ से ही आपके माइंड में एक चीज़ डायरेक्टली आनी चाहिए कि मोलर प्रेगनेंसी के बारे में शायद ये बात करें. ठीक है. और उसको एमेन्यूरिया भी है. व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट? आप उसके लिए डायरेक्टली सीरम बीटा HCG करो ताकि आपको पता चले कि वेदर इट इज़ अ मोल और नॉट. A 48-year-old man undergoes pelvic surgery for rectal mass. During the procedure, the surgeon notes that one of the arterial branches that usually arise from anterior division of the internal iliac artery is absent bilaterally. ठीक है. मैन को पेल्विक सर्जरी हुई फॉर रेक्टल मास. प्रोसीजर के अंदर सर्जन ने नोट किया कि आर्टीरियल ब्रांचेस जो आपके साथ यूजुअली अराइज करते हैं फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी वो आपके साथ एब्सेंट हैं. ठीक है. इस कंडीशन को हम कहते हैं which is considered a non-congenital variation. So this is considered a congenital variation. Despite this, the rectum continues to receive adequate blood supply from superior and inferior rectal arteries. Which artery is most likely congenitally absent in this patient? तो इस patient में आपके साथ congenitally कौन सी artery absent है? That is your middle rectal artery. ठीक है. फिर है 3-year-old child is brought for evaluation of protuberant abdomen. The parent reports that the child tries easily and becomes irritable if meals are delayed. Physical examination आपके साथ it shows mild hepatomegaly but the child has normal growth and development. Laboratory finding पे आपको hypoglycemia नज़र आ रही है, lactic acid normal है, uric acid normal, triglyceride normal, elevation in the liver, transaminase. liver biopsy पे आपको जो है markedly increased glycogen storage नज़र आ रही है और enzyme analysis shows deficiency of G6 glycogen phosphorylase. तो यहाँ पे आपका डायग्नोसिस पड़ा है. ठीक है. ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, मसल फॉस्फोराइलेज, ये फॉस्फोराइलेज आपके साथ जो होता है ये मैकआर्डल में होता है. ठीक है. इन्होंने मैकआर्डल हर्स, अच्छा ये वहाँ पे आपके साथ मसल फॉस्फोराइलेज होता है लेकिन यहाँ पे इन्होंने आपको ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज आपके साथ हर्स डिजीज़ में होता है. ठीक है. अच्छा, 26-year-old primary gravida has been in labor for 24 hours with descent of fetal heart. She is dehydrated, febrile, tachycardic and exhausted. On examination पे fetal head is deeply impacted, capit molding positive है, Bandel's ring is visible and the vagina is hot and dry. Fetal heart rate is absent. What is the likely diagnosis? 26-year primary gravida है, लेबर में है 24 हार्ट से, नो फीटल हार्ट, अच्छा नो डिसेंट ऑफ द फीटल हेड है, डिहाइड्रेटेड, फेब्राइल, टेकिकार्डिक है. एग्जामिनेशन पे फीटल हेड इज़ डीपली इम्पैक्टेड, उसमें आपको मोल्डिंग बैंडल्स रिंग नज़र आ रहे हैं, वजाइना इज़ हॉट एंड ड्राई, फीटल हार्ट जो है आपके साथ एब्सेंट है. तो ये आपके साथ कौन सा डायग्नोसिस हुआ? ठीक है. तो इनमें से आपको कौन सा लगता है? दिस इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, सॉरी दिस इज़ यस ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर विद इम्पीडिंग यूट्राइन रप्चर. ठीक है.
तो दिस इज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर विद impeding यूट्राइन रप्चर। फिर है अ 28-year-old प्राइमरी ग्रेविडा इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में है, हैज़ बीन पुशिंग फॉर द लास्ट 2 hours, for more than 2 hours, is exhausted, dehydrated, and crying with fatigue. Contractions are strong and frequent. Examination cervix is fully dilated. Head जो है ज़ीरो स्टेशन पे है, severe capit and molding है. The head feels deeply impacted in the pelvis. She has been pushing forcefully with no progress. Fetal heart आपको tachycardic नज़र आ रहा है. Mother is exhausted and ketotic भी है. Midwife notes forceful DDV, descent delivery by vacuum, is contraindicated. What is the most likely diagnosis? तो इसका most likely diagnosis आपको क्या लग रहा है amongst the following? ठीक है, maternal exhaustion leading to secondary arrest, prolonged second stage with obstructed labor, cephalodisproportion without obstruction, और आपके साथ insufficient uterine contraction, malposition. तो this is prolonged second stage of labor with obstructed labor. ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग हुआ है. फिर उसके बाद है 26-year-old मल्टी ग्रेविडा लेबर फॉर 16 आवर, डेवलप हाई फीवर 39 डिग्री, मैटरनल पल्स 130 पर मिनट, फीटल टेकिकार्डिया, माइल्ड यूट्राइन टेंडरनेस है, फाउल स्मेलिंग, एमनियोटिक फ्लूइड, सर्विक्स इज प्रोग्रेसिंग स्लोली, नो बैंडल्स रिंग, नो डीपली इम्पैक्टेड हेड. तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस आपको अमंग्स द फॉलोइंग क्या लग रहा है? ठीक है, तो दिस इज़ अ केस ऑफ, ये आपको आपके साथ क्या है, दिस इज़ ऑप्शन सी कोरियो एमनियोनाइटिस इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन. फिर है 32-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद वेट लॉस, पैल्पिटेशन, हीट इंटॉलरेंस फॉर 3 months. शी कंप्लेन्स ऑफ ट्रिमर, फ्रीक्वेंट लूज स्टूल्स. एग्जामिनेशन पे पल्स हाई है, बीपी थोड़ा सा नॉर्मल है, वार्म मॉइस्ट स्किन, फाइन ट्रेमर्स ऑफ द हैंड, डिफ्यूज नॉन टेंडर गोइटर है, लिड लैग है, एक्सोफ्थेलमस है, हाइपर एक्टिव. इन्वेस्टिगेशन पे TSH आपके साथ कम है, T4 आपके साथ एलिवेटेड है, T3 आपके साथ एलिवेटेड है. ठीक है, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, anti-TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है. ठीक है, तो ये आपके साथ इन्होंने तो आपको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया. ठीक है, एक्सोफ्थेलमस भी है, लिड लैग भी है, तो ये सिंपली दिस इज़ वेरी इजी, दिस इज़ ग्रेव्स डिजीज़. ठीक है, 38-year-old मल्टीपेरस वुमेन प्रेजेंट्स विद पेल्विक हैवीनेस है, उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है एंड बल्ज एट द विजाइनल इंट्रोशियस. एग्जामिनेशन पे यूट्रस आपको प्रोलैप्स नज़र आ रहा है, डिसेंडिंग इनटू द विजाइना. सर्विक्स फील सॉफ्ट मोबाइल and descent on valsalva. Vaginal walls are lax. Gynecologist explains the supporting ligament of uterus have weakened, leading to prolapse. Which ligament primarily maintains the anterior posterior support of the uterus and prevents the uterine prolapse? ठीक है, तो uterine prolapse और anterior posterior सपोर्ट को मेंटेन करता है. अमंग्स द फॉलोइंग आपको कौन सा लग रहा है? तो इसमें आपने याद रखना है CBP. ठीक है, कार्डिनल लिगामेंट इज़ ग्रेटर देन, ब्रॉड लिगामेंट इज़ ग्रेटर देन पेल्विक ब्रिम. वैसे कार्डिनल आपके साथ कार्डिनल या ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट आपको मिलता है इन 4th degree यूट्राइन प्रोलैप्स. 1, 2, 3 में आपको यूट्रोसैक्रल मिलेंगे. A woman in labor is planned for assisted vaginal delivery. The fetal head is in occipito anterior presentation. Which instrument is most appropriate? तो इसके लिए जो है आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है? अगर फीटल हेड इज़ इन ऑसिपिटो एंटीरियर प्रेजेंटेशन, यू यूज़ द आउटलेट फॉरसेप्स. ऑसिपिटो एंटीरियर जो है आइडियल पोजीशन फॉर फॉरसेप असिस्टेड डिलीवरी है, तो ऑसिपिटो एंटीरियर अगर होगा ये सबसे आइडियल पोजीशन है. की लैंड जो है रैशनल है, पाइपर आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच, वेंटोज ऑल्सो पॉसिबल, but forceps preferred for occipito anterior when good application is possible. तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, पाइपर आप आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच, वेंटोज कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, लेकिन फोरसेप्स जो है आउटलेट फोरसेप्स ये आपके साथ सबसे
गुड एप्लीकेशन ये आपके साथ सबसे अच्छा काम करती है, ठीक है। अ वुमन प्रेजेंट्स विद अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट अल्ट्रासाउंड शोज a gestational sac at 6 weeks located high and lateral in the uterus surrounded by myometrium and adjacent to the tubal tissues. What is the most likely diagnosis? तो वुमेन को पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड पे गेस्टेशनल सैक 6 वीक्स पे नज़र आ रहा है। अच्छा, हाई एंड लैटरल यूट्रस है सराउंडेड बाय मायोमीट्रियम और एडजेसेंट टू ट्यूबल टिश्यूज़। तो इसमें आपको कौन सा डायग्नोज नज़र क्या लग रहा है? दिस इज़ इंट्रस्टिशियल कॉर्नुअल प्रेगनेंसी, ठीक है। इंट्रस्टिशियल प्रेगनेंसी आपके साथ अपीयर्स एज अ सैक that is surrounded by myometrium. It is located lateral to the uterine cavity near the interstitial portion of the fallopian tube. फिर है a postmenopausal woman undergoes transvaginal ultrasound showing endometrial thickness 9 to 19 millimeter. She is not on hormone therapy. What is the next step? Final diagnosis most consistent with the finding. तो इसमें आपको क्या लग रहा है? दिस इज़ अ केस ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और मेलिग्नेंसी। फिर है अ वुमेन विद 9 ईयर ऑफ इनफर्टिलिटी अंडरगोज हार्मोनल इवेल्युएशन, हर एंटी मुलेरियन हार्मोन लेवल इज़ लेस देन 1, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट? तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे इन मैनेजमेंट? ठीक है, यहाँ पे पॉज करके यू कैन थिंक अबाउट इट। सो दिस इज़ कंसिडर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक और डोनर ओसाइट। AMH लेस देन 1 हो तो आपने इट इंडिकेट सेवेरली डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व। तो कन्वेंशनल ओव्यूलेशन इंडक्शन इज़ अनलाइकली टू सक्सीड। IVF विद ओन एग मे हैव वेरी लो सक्सेस। डोनर ओसाइट ऑफन रिक्वायर्ड। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि यू कंसिडर IVF or donor oocytes. Which of the following टोकोलिटिक्स कैन कॉज मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया? तो कौन सा टोकोलिटिक है जो आपके साथ मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर सकता है? दैट इज़ योर मैग्नीशियम, दैट इज़ योर टर्ब्यूटलीन। टर्ब्यूटलीन टर्ब्यूटलीन जो है ये एक बीटा 2 एगोनिस्ट है और ये आपके साथ हाइपरग्लाइसीमिया, टेकिकार्डिया, हाइपोकेलीमिया कॉज करवाता है, ठीक है। तो टर्ब्यूटलिन याद रखें। A patient presents with wrist drop, weakness in finger extension and numbness over the dorsal hand. Wrist drop है, finger extension में मसला है, numbness over the dorsal hand है। यहाँ तक आपको क्या लगता है कौन सा नर्व इन्वॉल्व है? रेडियल नर्व इन्वॉल्व है, ठीक है। एक्सटेंशन में प्रॉब्लम है, डॉर्सल हैंड भी इन्वॉल्व है। फॉलोइंग अ फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड आर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली? अभी ये साइट ऑफ इंजरी का पूछ रहे हैं। आउटस्ट्रेच हैंड पे उसने फॉल किया है, ठीक है। तो आउटस्ट्रेच हैंड पे जब फॉल हुआ है तो कौन सा मोस्ट लाइकली साइट ऑफ इंजरी? दैट इज़ योर मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। रेडियल नर्व आपके साथ रेडियल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरल शाफ्ट में जाता है। मिड शाफ्ट फ्रैक्चर कैन इंजर द रेडियल नर्व और रिस्ट ड्रॉप कॉज करवा सकता है एंड लॉस ऑफ फिंगर एंड थंब एक्सटेंशन। सेंसरी लॉस जो है ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड, आपको सेंसरी लॉस भी मिलेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट पेपर। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली गिव मी योर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सक्रिप्शन। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड अपना वैल्यूबल फीडबैक आप कमेंट सेक्शंस में भी दे सकते हैं इफ़ यू वांट मी टू इम्प्रूव इन एनी वे। सो दिस इज़ ऑल अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मैं उस टाइप के लेक्चर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।